A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last three videos, we already discussed the few of the important topics related to the volume 2 of part A of your class 12th accountancy. In the whole volume 2, firstly we discussed the issue of debenture. As you know very well, there are basically three values by which at which company issued its debenture, that is an at par, at premium and at discount. And if we are talking about the redemption of the debenture, so company may redeem its debenture after a certain period at two values, that is, and first one is at par and number second is at premium. So with the help of these issue and redemption conditions, you can see that company can issue its debenture on the terms of with the terms of the redemption. So in this video, firstly we discuss the concept of interest on debenture. Thereafter we discussed and revised the numerical quotient related to the issue of debenture with condition of redemption, that is an issued at par, redemption at premium, issued at par, redemption at discount, redemption at par, issued at discount, redemption at premium. Lots of the cases are there, and thereafter we will discuss the numerical problem related to the interest on debenture. So without creating any delay, let's we start today's topic, that is an interest on debenture. So first of all, what is interest on debenture? You know very well, when any company issued its debenture, it will be known as a written acknowledgement of the debt, and debenture holder gets a specified rate of return on इट्स इन्वेस्टमेंट मनी. यानी जब कोई डिबेंचर होल्डर या कोई पर्सन किसी कंपनी का डिबेंचर परचेस करता है, तो कंपनी उस डिबेंचर होल्डर को रिडम्पशन पे उस डिबेंचर का वैल्यू तो पे करेगी, साथ ही साथ एनुअली कंपनी क्या करती है, एनुअली, क्वार्टरली या 6 मंथली क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट पे करती है. सो सच विल बी नोन एज एन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो यू नो वेरी वेल, एज इट लाइक एज इन ऑन द शेयर पे हम लोग क्या देते हैं, डिविडेंड. उसी तरह से हम डिबेंचर्स पे क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट. सो शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड और डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट. तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर एज फॉलोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, generally company paid interest on debenture okay. So company paid interest on debenture. Generally company paid interest on debenture to debenture holder at every 6 months. It means जनरली कंपनी डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे करती है, किस पे, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करती है, वो कब पे करती है, एट एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने पे करती है. इट मींस जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है वो किस नेचर का होता है, हाफ ईयरली नेचर का होता है. जनरली की बात करें, यानी मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ऐसा देखा जाता है. सेकेंड, द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंटरेस्ट on debenture is a charge against profit. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. इट मींस इसे देना कंपल्सरी होता है वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. यानी हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना जरूरी है. And number third, company charges TDS on interest
on debenture and paid it to government. ये याद रखना है आपको, कंपनी जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है उस पर क्या चार्ज करती है, टीडीएस. जो भी एप्लीकेबल रेट होगा टीडीएस का उस पर टीडीएस कट करेगी और उसे किसे पे करेगी, गवर्नमेंट को. सो बेसिकली कुछ चीजें हमारी क्लियर हो गई. पहली बात कि कंपनी हर 6 महीने पे यानी हाफ ईयरली के हिसाब से अपने डिबेंचर होल्डर को क्या देगी, इंटरेस्ट पे करेगी. नंबर सेकेंड, इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. और सबसे थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंपनी उस इंटरेस्ट पे क्या कट डाउन करेगी, यस क्या कट डाउन करेगी, दैट इज एन टीडीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. और उस टीडीएस को कट करके गवर्नमेंट को जमा करेगी. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कट ऑफ द टीडीएस and paid the balance amount, paid the total TDS to the government after a particular period. So you can see that the three important points related to the interest on debentures. So let's we move to the journal entry. Okay, so please note down the journal entry related to the interest on debenture. So the journal entry related to the interest on debenture are as follows. Journal entries related to interest on debenture. So the journal entry of interest on debenture are as follows. As you can see that the first journal entry which are related to the interest on debenture, first of all company due the interest. सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सबसे पहले कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट ड्यू करती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है, दैट इज एन डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल. जैसे भी हमने आपको बताया कि कंपनी जितना भी टोटल इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट पे कुछ पैसा डिबेंचर होल्डर को देगी आफ्टर डिडक्टिंग द टीडीएस. कुछ नहीं कह सकते, कुछ टीडीएस कट करके. सो द जर्नल एंट्री विल बी अ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पे. एंड आफ्टर दैट कंपनी क्या पे करेगी, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी और गवर्नमेंट को टीडीएस पे करेगी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. जब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, ऑन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट के केस में द जर्नल एंट्री विल बी अ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट to bank. And number third entry on payment of TDS. और जब TDS पे करेगी तो उसकी जर्नल एंट्री होगी, that is an TDS payable account debit to bank. So you can see that the entry number 2 and entry number 3 can be passed combinedly. फर्स्टली हमने इंटरेस्ट पे किया, सेकेंडली वी पे द टीडीएस, सो द एंट्री विल बी अ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टीडीएस पेबल टू बैंक. सो उसको हम चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक. एंड एंट्री नंबर 4 एट द एंड ऑफ द ईयर, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल में एक बार, क्योंकि ये इंक्रीज हर एवरी 6 मंथ में पास होती है जनरली, एवरी 6 मंथ. ठीक, यानी ये इंक्रीज साल में 2 बार पास होती हैं, बट दिस एंट्री विल बी पास्ड एट वंस इन द ईयर. सो द फोर्थ एंट्री इज एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल. सारा इंटरेस्ट कहां पे सबमिट कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू द
statement of PL. So the journal entry will be a statement of PL account debit to statement of PL account debit to interest on debenture. So this will be the general entries related to the interest on debenture. So I hope it is very clear for you. So please note down in your copy properly, and thereafter we will move to the numerical question related to the journal entries to interest on debenture. So now let's we move to the question. So the question is, please note down in your copy. Moon Limited issued 10% debenture of rupees 100 each. यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है. Moon Limited issued 10% debenture of rupees 100 each at 8% discount, redeemable at 5% premium after 5 years. I hope it is clear for you. एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन. Moon Limited issued 10% debenture of rupees 100 each at 8% discount, redeemable at 5% premium after 5 years. Interest on debenture was paid half yearly. आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना है हाफ ईयरली. वो भी कब? हाफ ईयरली ऑन 30 September and 31st March every year. आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली, 30 September को, 31st March को, every year. The next information is, after deducting TDS at the rate of 10%, okay, pass entries. So the question is very clear about it. Moon Limited ने 10% डिबेंचर इशू किया. 100 रुपए का जो डिबेंचर था 8% डिस्काउंट पे इशू है. रिडम्पशन किस पे? 5% प्रीमियम पे. तो पहले हम लोग इशू जर्नल एंट्री पास करेंगे मार्च अप्रैल 1 में. पहले हमने डिबेंचर इशू किया. डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. इशू किस पे हुआ है? 8% डिस्काउंट. सो 100 का 8% कितना होगा? 8. सो इशू कितने पे हुआ? 92 पे. कितने डिबेंचर? 10,000. So the value will be 9,20,000. First entry is clear. And after that, you know very well, redemption at premium. So it is a loss. So उसका भी provision create करना पड़ेगा हमको. So the entry will be a debenture, 10% debenture application and allotment account debit to 10% debenture. Okay, so the value of the debenture is 10 lakh. How? 100 multiplied by 10,000. So the value of the debenture is 10 lakh, and discount on issue of debenture. आपने डिबेंचर इशू करने में कितना डिस्काउंट दिया था? 8%. 100 का 8 is 8 into 80, 10,000. That is an 80,000 is a discount. आप यहीं से कंपैरिजन कर लो कि आपको मिला 9,20,000, जबकि आपने
कितने का डिवेंचर था 10 लाख, तो 80,000 आपका डिस्काउंट है। और रिडम्पशन पे क्या है प्रीमियम, सो प्रीमियम को क्रिएट कर दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना प्रीमियम आपको पे करना है 10%, तो 100 का 10% इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, सो आपको 1 लाख रुपए क्या बियर करना है प्रीमियम। सो टोटल लॉस विल बी यहां अगर आप चाहो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ले सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। कैसे लॉस आएगा 80,000 आपका डिस्काउंट का लॉस और प्रीमियम पे रिडम्पशन का लॉस कितना 1 लाख, तो टोटल लॉस विल बी 1,80,000 और यहाँ ऑटोमेटिक 9,20,000 आएगा। आप देख रहे हैं 9 and 10 11 लाख एंड 11 लाख। ओके, सो ये जो दो एंट्री हुई है वो आपकी किस चीज की हुई है, इशू ऑफ डिवेंचर, यानी फर्स्ट लाइन की कि मून लिमिटेड ने इतना डिवेंचर इशू किया 8% डिस्काउंट पे, जो रिडम्पशन होगा 5% प्रीमियम पे। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर पे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है। कब कब पे करना है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो हम डिवेंचर की पर एंट्री पास करते हैं। 30 सितंबर को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS payable. Okay, so interest on debenture कितना है आपका 10 लाख का डिवेंचर है एंड द रेट ऑफ डिवेंचर इज 10%, सो 10 लाख इंटू 10%, और साल में कितनी बार इंटरेस्ट देना है 2 बार, सो 6 मंथ का इंटरेस्ट 50,000 एंड TDS विल बी 10%, सो 50,000 का 10% इज 5,000 और इंटरेस्ट कितना पे करोगे 45,000। So this is an entry number 1, this will be entry number 2, this will be entry number 3. Okay, now entry number 4 is, आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, मैं कंबाइन कर दे रहा हूं यहां पर, डिवेंचर होल्डर डेबिट TDS पेबल डेबिट टू बैंक। डिवेंचर होल्डर इज 45,000, TDS is 5,000, so total bank payment is 50,000. Okay, and thereafter, you know very well, again this entry will be passed on 31st March, and this will entry number fast will be on 31st March. Entry number 5 and entry number 6. How? You know very well. कैसे क्यों होता है ये आपको पता है, इसलिए होता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट 2 बार देना है। तो पहले 30 सितंबर को आपने इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर उसको पे किया TDS कट करके, यहां पर फिर एंट्री नंबर 5 एंड 6 को फिर 31 मार्च को ये एंट्री फिर पास होगी क्योंकि आपको फिर इंटरेस्ट पे करना है। एंड लास्ट एंट्री नंबर 7 टोटल इंटरेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ PL के थ्रू आप टोटल इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दोगे, इट विल बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ PL। फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट 50,000, second 6 month का interest 50,000, so total interest will be transferred to the interest statement of PL is 1 lakh. So this is the solution of this question. Okay, I hope it is clear. पहले मैंने डिवेंचर इशू किया फर्स्ट 2 एंट्री में, फिर एंट्री नंबर 3 एंड 4 में मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट पे किया, TDS कट किया, TDS पे किया, फिर 5th एंड 6th में अगेन लेफ्ट 6 मंथ का हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, उसको पे किया, and thereafter total interest will be transferred to the statement of PL. So please note down in your copy properly. The question which are related to this topic, the topic is issue of debenture for in terms of the condition of the redemption. So the question is, give journal entries in each of the following situation, assuming face value of debenture is ₹100। यानी आपको जनरल एंट्री पास करनी है हर सिचुएशन में
और ये एज्यूम करना है कि डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 100. सो द फर्स्ट सिचुएशन इज 209% डिवेंचर issued at rupees 100, payable at rupees 90, 105. Number second, 511% debenture issued at par, payable at 5% premium, payable at 10% premium. थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है. ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन विल बी अ 412% डिबेंचर issued at 10% discount, payable या redeemable, payable at 5% discount. ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं जहां स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो उसमें मैंने पहला जो सिचुएशन लिया उसको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, आप सभी लोगों के लिए एनालाइज करना जरूरी है. जिसमें पहला सिचुएशन है कि जिसमें हम इशू कर रहे हैं पार पे, रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे. ये पार पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है. प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे ही रिडम्पशन हो रहा है. डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है. सॉरी, प्रीमियम होगा. ओके, सो उसका सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन. सॉल्यूशन, पहला कंडीशन देखते हैं. 209% डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए का, पेबल है 105 रुपए पे. सो द जर्नल एंट्री विल बी फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट केस. द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 209% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. अमाउंट कैसे लिखेंगे? इशू किस पे हो रहा है? 100 पे, तो 200 into 100. सो दिस इज 20,000. The second entry of the case one will be a payable as 105. तो you know variable redemption पे प्रीमियम है और ये आपके लिए लॉस है. So the entry will be a 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से मिला हमको 20,000 रुपए, और ये 20,000 रुपए एक्चुअल फेस वैल्यू भी है डिबेंचर की. 200 डिबेंचर है और डिबेंचर की वैल्यू है 100. सो द वैल्यू इज 20,000. रिडम्पशन किस पे है? 105 में, यानी 5 रुपए प्रीमियम का हो गया. सो प्रीमियम को हम लोग करते हैं क्रेडिट. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर, it will be a 200 multiplied by 5. Okay, that is a 1,000. and loss कितना हो गया हमारे लिए? 1,000. so the debit is loss on issue of debenture is 1,000. Okay, I hope it is clear for you. Let's we take the condition number 2. Condition number 2. What is the condition number 2? 511% debenture issued at 5% premium, payable at 10% premium. So पैसा मिला हमको बैंक अकाउंट डेबिट to 11% debenture application and allotment. How many debenture? 500. What is the face value of the debenture? Is 100. 100 का 5% प्रीमियम कितना हुआ? 105. Okay. So the value is 22,500. The second entry, 11%
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 22,500 टू रिडम्पशन किस पे करना है 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है टू 11% डिवेंचर 500 into 100 that is an यहां थोड़ी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में ये वैल्यू होगी 52,500 एंड 11% की वैल्यू कितनी है 50,000 एंड इशू पे प्रीमियम कितना है इशू पे प्रीमियम बताइए फटाक से इशू पे प्रीमियम कितना है इशू पे प्रीमियम है 5% सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट इज एन 5 into 500 2,500 और रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है 10 तो उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10% किसका 10% 50,000 का 10% दैट इज इन 5,000 और उसको क्या करेंगे डेबिट डेबिट क्या लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यानी आपको रिडम्पशन पे कितना देना है 10% तो ये लॉस हो गया आपके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसी चीज को बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाना है उसको इजी बना के चलना है ओके so let's we move to the next concept the third one 412% debenture issued at 10% discount payable at 5% premium okay तो उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं केस नंबर 3 की एंट्री नंबर 3 क्या हो रहा है इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे so the journal entry will be bank account debit to 12% debenture application and allotment 400 multiplied by 10% डिस्काउंट है तो 100 का शेयर है तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 36,000 ओके एंड आफ्टर दैट इट इज पेबल एट 5% प्रीमियम यानी इशू हो रहा है 10% डिस्काउंट पे तो 10 रुपए लॉस हो गया रिडम्पशन हो रहा है 5% प्रीमियम तो 5 रुपए लॉस हो गया टोटल मिलाकर लॉस कितना हो गया 15% लॉस हो गया तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं डेबिट ये एंट्री दिख रही है आप लोग को वैसे ही यहां पे भी इंक्रीज होगी नंबर 2 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर and the value of the debenture is 400 into 100 face value से ही क्रेडिट करते हैं 40,000 और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हुआ 36,000 4,000 रुपए का डिस्काउंट है और प्रीमियम कितना बोला है 5% तो प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट रिडम्पशन पे है सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वैल्यू इज 5% सो 400 into 5 2,000 so total 4,000 इशू का एंड 5% प्रीमियम है तो 2,000 रिडम्पशन का टोटल हो गया 6,000 इसको हम लोग डेबिट कर देंगे एज एन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर को इशू करने पे हमें टोटल लॉस कितना हुआ 6,000 रुपए कैसे 10% इशू के टाइम हमें डिस्काउंट बियर करना पड़ा और 5% प्रीमियम बियर करना पड़ा एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन So total 15% on the 40,000 will be taken. Now we are moving to the next topic that is a writing of discount. Writing of discount on issue of debenture. What is writing of discount on issue of debenture? Basically, you know very well, when we issue the debenture on the terms of the redemption, we can see that a lots of losses are occurred there. First, when debenture are issued at discount,
when debenture are redeemable at premium. So this will be an example of the losses on the issue of debenture. You know very well, जब हम इशू करेंगे डिस्काउंट पे तो हमें कम पैसा मिलेगा, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एन लॉसेस. एंड व्हेन वी redeem the debenture at premium, so it is also known as a loss. So according to Companies Act 2013, it is the responsibility of the accountant to write off such losses with the following of the specified provision. Okay, so today we will discuss the writing of discount on the issue of debenture without creating delay. Let's we discuss about it. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. As you know very well, in today's video, firstly we discussed the new concept, that is an interest on debenture. Thereafter we discussed the practical problem related to the interest on debenture and issue of debenture with condition of redemption, and we solved the practical problem based on the interest on debenture and the issue of debenture on condition of redemption. And thereafter we will start a new topic, that is an writing of discount on issue of debenture. In the next video we will discuss about it in detail. So without creating any delay, let's we close today's session. I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot and take care.